हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के बारे में डील करेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। पर उसके पहले हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स के बारे में देखते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, अगर ग्राफिकली इसको देखा जाए तो सपोज हमारे पास दो कर्व हैं, वन इज दिस कर्व, another one is this one. Okay, this is curve 1, this is curve 2. Is it clear? X axis, Y axis. तो इस पॉइंट को हम P1 मानते हैं, इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए। मीन्स PT1 is tangent at curve 1, PT2 is tangent at curve 2. ओके, तो ये है। तो देखिए कर्व y इक्वल्स टू f2x, so dy by dx will be d by dx of f1x. This is curve 1, dy by dx of curve 2 is d by dx of f2x. क्लियर? तो इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो एंगल थीटा कितना आएगा? दिस एंगल थीटा विल बी θ2 minus θ1. Hence tan theta will come out to be tan θ2 minus θ1, means tan θ2 minus tan θ1 upon 1 plus tan θ2 into tan θ1. ओके, बट dy by dx ये अपने आप में क्या होता है? ये अपने आप में tan θ1 है, dy by dx at 2 is tan θ2. So angle of intersection theta is tan inverse dy by dx 2 minus dy by dx 1 upon 1 plus dy by dx 1 into dy by dx 2. Okay, this is called angle of intersection of two curves. पहला कर्व था ये, दूसरा कर्व ये। पहले कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप dy by dx at 1, दूसरे कर्व पे टेंजेंट का स्लोप dy by dx at 2. ओके, बट फाइनली एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज थीटा इक्वल्स टू θ2 minus θ1. So tan theta is tan θ2 minus θ1. So tan θ2 minus tan θ1 upon 1 plus tan θ2 tan θ1. So theta is tan inverse of dy by dx of 2 minus dy by dx at 1 upon 1 plus dy by dx at 1 into dy by dx at 2. Okay. Now there comes
condition of orthogonality. If angle of intersection of two curves is 90 degree, then they are called orthogonal curves, right? So 1 plus dy by dx at 1 into dy by dx at 2, that is equals to 0. Okay, so dy by dx at 1 into dy by dx at 2, that is equals to minus 1. This is condition of orthogonality. Okay, चलिए now there is one question, one problem. Problem is, find the angle of intersection of the curves y equals to x square, y is equals to x square, y is equals to 4 minus x square. Find angle of intersection. Okay, so find in angle of intersection means ये कैसे निकलेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2. ओके, अब dy by dx को हम फाइंड करेंगे. dy by dx at root 2 is 2x is 2 into root 2. dy by dx for second curve, this is for first curve. For second curve, that will be minus 2x means at root 2, that is minus 2 root 2. Okay, so this is equals to m2, this is equals to m1. Tan theta equals to comes out to be mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Okay, so tan theta equals to 2 root 2 plus 2 root 2 upon 1 plus 8. Okay, so 4 root 2 upon this is 7 tan theta. So theta equals to tan inverse 4 root 2 upon 7. This is the value. Now this is condition at the point x equals to root 2.
बट x इक्वल्स टू -√2 पे क्या आएगा, इसको भी हमें करके देखना है। ओके x इक्वल्स टू -√2 dy by dx for first curve at -√2 will be equals to -2√2 for curve to -√2 is equals to 2√2 मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इस तरीके से निकल के आएगा। ओके ओके तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ओके इन दो चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है यहाँ पे एक चर्चा होती है टेंजेंट नॉर्मल सबटेंजेंट सब नॉर्मल। तो यहाँ पे इसके डायग्राम को देखते हैं। सपोज ये आपका कर्व y इज इक्वल्स टू fx xy, ये पॉइंट P है आपका x1 y1, ये है आपका T। दिस इज N, this one is S। So this one is y1। ओके तो यहाँ पे हम लोग ये जो है PT is length of tangent, PN is length of normal, TS is length of subtangent, SN is length of सब नॉर्मल। ओके सो इसको हम कैसे करते हैं, ये लेंथ कितनी है y1 बिकॉज पॉइंट P इज x1, y1। तो जैसे y इक्वल्स टू fx हमें कर दिया हुआ है। ओके तो dy by dx at x1, y1, this is slope of tangent means tan theta, this is theta, this is tan theta। okay y1 is this is ts। सो अब यहाँ पे थीटा और y1 के टर्म में हम लोग ts को निकाल सकते हैं ना। ts is length of subtangent, length of subtangent, that is given by tan theta equals to
y1 upon ts, hence ts equals to y1 upon tan theta, means y1 upon dy by dx at x1 y1 means y1 times dx upon dy at x1 y1. This is clear. Ts is this one. Now pt is equals to under root ps square plus ts square. ps square is y1 square plus ts square is y1 square dx upon dy at x1 y1 whole square. So this is y1 times under root 1 plus dx by dy at x1 y1 whole square. So pt means लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका ये निकल आया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपका ये निकल आया. ओके, इसको नोट करिए. Now come to length of subnormal, that is in triangle PSN, PS upon SN, if this angle is theta, this is 90, then this one is 90 minus theta. So here PS upon SN is equals to cot theta. So PSN equals to PS divided by cot theta. So SN equals to PS into tan theta. PS is y1, SN is this one. Clear? Okay. So SN is what? Length of subnormal. This is length of subnormal. Length of normal is given by y1 under root 1 plus dy by dx at x1 y1 whole square. This is length of normal. ओके, सो इसको देखिए, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है. इससे पहले ये तो कर्व ये लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स. ओके, अब टेंजेंट का कंडीशन क्या होता है? टेंजेंट किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करके उस पर जो आता है उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से फिर हमको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गई, लेंथ ऑफ नॉर्मल मिला, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मिला, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मिला. इसको इस फॉर्मूले में रख के सब कुछ कर को ला के हमको ये चार फॉर्मूले 1 2 3 4 चार फॉर्मूले मिलते हैं. ओके, तो इनको हमें याद रखना है. क्लियर? अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रॉब्लम्स पे आते हैं. इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनको करते हैं. ओके,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट पर हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि अभी फॉर्मूला आया था कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y1 dy by dx at x1 y1 length of सब टेंजेंट कितना होता है y1 dx upon dy x1 y1 length of टेंजेंट कितना होता है y1 अंडर रूट 1 प्लस dx upon dy होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल comes out to be y1 under root 1 plus dy by dx at x1 y1 होल स्क्वायर। ये होता है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कर्व के लिए पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy by dx इक्वल्स टू 4a। ओके सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 4a अपॉन 2y मीन्स 2a अपॉन y। सो डी वाई बाई डी एक्स एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 कितना आ जाएगा 2a अपॉन 280 मीन्स 1 अपॉन t। क्लियर। तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे तो सारा का सारा क्या निकल के आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ यहाँ पे y1 क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट इज y1 अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy एट x1 y1 होल स्क्वायर। सो y1 इसमें कितना है y1 है 280 अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy कितना आ जाएगा t। सो 1 प्लस टी स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आएगा y1 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके Good evening, sir. So,
लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसे निकल के आ गया? सब टेंजेंट मीन्स y1, y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 280 y1 dx अपॉन dy इंटू dx अपॉन dy कितना है? dx अपॉन dy विल बी t. ओके, तो 2a t स्क्वायर and length of some normal, length of subnormal is given by y1 dy by dx at x1 y1 means y1 is यूट्यूब पे आप लोग हैं ना, उधर अंदर छत के नीचे रख के आप उसको देख सकते हैं। बड़ा हमारा घर में खाना जीने में रखा। means 2a. So these are the values. ओके, तो इस तरीके से हम टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल को डील करेंगे, टैकल करेंगे. ओके.